توہین کے ایمان بولتے ہیں. اور عزیزوں 1400 سال سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ اسلام میں شیعت کیا ہے؟ اسلام میں شیعت کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعت میں اسلام کیا ہے. شیعت میں اسلام کیا ہے؟ شیعت کو سمجھے، شیعت ہے کیا چیز؟ عزیزوں آج کی ایک تازہ نمائندہ جس کی تسبیح کے ہلتے ہوئے دانوں سے امریکہ کانپتا ہے. تسبیح تو سب کے ہاتھ میں ہے، تسبیح تو سب کے ہاتھ میں ہے، لیکن سب کی تسبیح میں اور خمینی کی تسبیح میں کیا فرق ہے؟ بھائی افریقی مسلمان کے بھی ہاتھ میں تسبیح ہے، سعودی مسلمان کے بھی ہاتھ میں تسبیح ہے، دبئی کے مسلمان کے بھی ہاتھ میں تسبیح ہے، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے. لیکن سب کی تسبیح میں اور خمینی کی تسبیح میں کیا فرق ہے؟ کہا بہت بڑا فرق ہے. سب کے ہاتھ میں یاقوت کی تسبیح ہے، پلاسٹک کی تسبیح ہے، عقیق کی تسبیح ہے، لیکن خمینی کے ہاتھ میں زہرا کی تسبیح ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، لیکن سب کی تسبیح میں اور خمینی کی تسبیح میں فرق ہے. تو عزیزوں شیعت کو پہچانے، شیعت ہے کیا چیز؟ عزیزوں میں یہ نہیں کہتا میں شیعہ ہوں، علی کا شیعہ ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ میں علی کا شیعہ ہوں. اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو کتنے پاورفل ہوتے ہیں شیعہ، جن کی تسبیح کے ہلتے ہوئے دانوں سے سپر پاور جلتا ہے. ایسے ہوتے ہیں شیعہ. شیعہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی چیز شیعہ نہیں ہوتی. عزیزوں شیعہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو دو لفظوں میں شیعہ کو میں 1400 سال کی شیعت کو دو لفظوں میں بند کرتا ہوں. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ اسے کہتے ہیں جو ایک بار ایمان لا کر شک نہ کرے، اسے شیعہ کہتے ہیں. جو ایک بار ایمان لے آئے اس کے بعد شک نہ کرے، اسے کہتے ہیں شیعہ. جس کے حالات بدلے اس کا امام نہ بدلے، اسے کہتے ہیں شیعہ. جس کے حالات بدلے امام ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایک انسان غریب سے امیر ہو جائے، امیر سے غریب ہو جائے، ہو سکتا ہے جوان سے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے سے جوان ہو جائے. لیکن سوتے وقت اگر شیعہ کو اٹھا کر پوچھا جائے کہ تمہارا امام کون ہے، تو وہ کبھی علی کہتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. علی کہتے ہوئے کبھی گھبراتا نہیں ہے. عزیزوں شیعہ کو سمجھیں. ہمارے ہاں تو آئیے زندہ انسان سے پوچھئے تب بھی وہ کہے گا ہمارے مولا ایک ہے، علی ہے. اور مردے سے فرشتے جب قبر میں پوچھیں تب بھی وہی جواب کہ ہمارا امام علی ہے. اچھا ایک سوال اور ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اسلام کی یہ حالت کیوں ہے؟ اسلام کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو عزیزوں میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر دوں کہ دیکھیے میڈیکل سائنس میں انسان کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ہے اس کا نام ہے خون. ہمارا جو بلڈ ہے سب سے خوبصورت چیز. انسان کے اندر سب سے خوبصورت چیز ہے اس کا خون. عزیزوں یہ خون ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر خرابیوں کو برداشت ہی نہیں کرتا. اپنے آزو بازو یا اگل بغل یہ خرابیوں کو برداشت ہی نہیں کرتا، یہ باہر رکھتا ہے خرابیوں کو. لیکن یہ انسان ہے کہ ساری گندگیوں کو اپنے اندر انڈیلے پڑا ہے. شراب کی صورت میں، ہر چیز کی صورت میں تمام گندگی کو اپنے اندر بھرے ہوئے ہے. لیکن عزیزوں ہم اس خون کو، زندگی کو آسان بنانے کے لیے اسے کسی نائب کی ضرورت ہے. اسلام کی حالت کیوں ایسی ہے؟ خون کو، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو ایک نائب کی ضرورت ہے. ایک نائب ہونا چاہیے جو اس جسم کے اندر جائے اور وہ بلڈ کو صاف کرے. تو انسان پانی پیے، اس کو ضرورت ہے پانی. جب انسان صاف پانی پیے گا تو میڈیکل سائنس کہتی ہے
जितना साफ आपका खून है उतना ही साफ अगर पानी पिएंगे तो आपकी सेहत बनी रहेगी। लेकिन जब आप गंदगी लेंगे अपने अंदर तो आपकी बीमारी आपके चेहरे पर आया हो जाएगी। इंसान की जरूरत यह थी कि ये साफ पानी पिए ताकि इसका ब्लड साफ रहे, लेकिन ये इंसान गंदा पानी पी पी कर अपने 20 साल तो हमारे जिस्म में कुछ नहीं बोला, लेकिन 20 साल के बाद ये जिस्म सारी बीमारियों को चेहरे पर लेके आया, सारी बीमारियों को चेहरे पर ले आया। तो अजीजों, इसी तरीके से इस्लाम की प्योरिटी ये थी कि मोहम्मद इसका रहबर हो। अब अगर किसी को मोहम्मद की जगह बैठाना हो, या तो मोहम्मद हो या मोहम्मद के जैसा हो। एक सलावत पढ़े। इस्लाम की खराबियां वहां से पैदा हुई जब मोहम्मद की जगह, पैगंबर की जगह किसी ऐसे इंसान को बैठा दिया गया कि जिसको मालूम ही नहीं कि 2 2 4 और 4 4 8 होता है। खराबियां वहीं से पैदा हुई, जबरदस्ती बिठा दिया गया। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। तो मेरे दोस्तों, शियत को पहचाने। शिया वो होता है कहाँ वो सहाबा, कहाँ लेने वाले, कहाँ देने वाले, उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा। अरे कहाँ मर गए बेटियां देने वाले। अरे सलाम। तो अजीजों, शियत को पहचाने, शियत के करीब जाए, शियत को तर्क करें। शियत है क्या चीज? अजीजों, शियत एक ऐसी चीज है, शिया तो छोटे मोटे लोग नहीं होते। शिया बड़ी ताकत है। अली का, हम तो अली के चाहने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं, वरना शिया के माने हैं पैरोकार, नक्शे कदम पर चलने वाला। ये कैसे हो सकता है कि इंसान नक्शे कदम पर चलते चलते उसका रास्ता कहीं और हो, इसका रास्ता कहीं और? ये मुमकिन नहीं है कि इंसान नक्शे कदम पर अगर चल रहा है तो जिस तरह से मौला करवाए हैं सारे काम, उसी तरीके से उस नक्शे कदम पर चलने वाला भी करेगा। शियत को पहचाने। एक खातून है कि जब खाना खाती है तो अली अली, पानी पीती है अली अली, उठती है तो अली अली, बैठती है तो अली अली, हर वक्त अली अली, जिसका नाम तारीख ने फरवा बताया है। मौला शहर के बाहर है, फरवा का कत्ल हो गया। मौला जब वापस आए तो मौला ने पूछा फरवा को क्या हुआ? लोगों ने बताया मौला उसका कत्ल हो गया। कहा किस जुर्म में कत्ल किया गया? कहा इसलिए कि विलायत के मानने के जुर्म में, विलायत के मानने के जुर्म में उसका कत्ल हो गया। मौला ने जैसे ही ये सुना, फौरन मौला कब्रिस्तान गए और कब्र में जाकर उसकी कब्र के, फरवा की कब्र के सामने खड़े हो गए और एक ठोकर
सकूं कि तेरा इमाम कौन है और मेरा इमाम कौन है। तो अजीजों, शिया को आप पहचाने, शिया क्या होते हैं? पैरोकार, नक्शे कदम पर चलने वालों को शिया कहते हैं। मौलाना शाह हैदर साहब ने एक वाकया पढ़ा था हारून मक्की का। हारून मक्की मौला के पास एक शख्स आया, कहने लगा, मौला हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके मानने वाले हैं, हम आपका हर वक्त दम भरते हैं, हमसे बड़ा चाहने वाला, हमारी कौम में सब आपको बहुत चाहते हैं। मौला ने गुलाम को बुलाया, गुलाम से कहा तंदूर रोशन करो। इसने सोचा कि मौला के पास आए हैं, आज अच्छा खाना पकवान तरह तरह के खाने मिलेंगे। अच्छा, ये बैठा सोच ही रहा था कि मौला ने कहा कि कूद जाओ इस तंदूर में। कहने लगा, मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं? कहने लगा, मौला ने कहा मैं कह रहा हूँ कूद जाओ इसमें। कहा, मौला कैसे ये हो सकता है? मैं कहा इसमें कहा भी जल के राख हो जाऊंगा। इतने में हारून मक्की आए। हारून मक्की से कहा मौला ने कि ये तंदूर में कूद जाओ। हारून मक्की ने कोई सवाल न किया, फौरन तंदूर में कूद गए। अच्छा, मौला ने तंदूर का ढक्कन बंद करवा दिया, बंद हो गया तंदूर। अब मौला बातें करने लगे, अच्छा बताओ और तुम्हारे यहाँ कैसी हाल है, सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये तो सारी बातें सुन रहा है, लेकिन बार बार इसकी नजर तंदूर की तरफ जा रही है कि आखिर क्या होगा। हारून मक्की तो जलकर राख हो गए होंगे, न जाने क्या हुआ होगा। उसके बाद मौला ने उसको साथ में लिया और साथ में लेकर तंदूर के पास आए, उसके ढक्कन को खोला। मौला ने देखा और उस शख्स ने भी देखा कि हारून मक्की कुरान की तिलावत कर रहा है। मौला ने पूछा कि बता इस तरह के चाहने वाले कितने हैं? मौला ने उस शख्स ने कहा कि मौला इस तरह के तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं। लिहाजा शिया बनो तो सिर्फ अपने आप को शिया कहना तो सब हर इंसान कह सकता है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना ये सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और अजीजों, देखें इस जमाने में मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को दर्स दें। घर से बड़ा मदरसा कहीं पर नहीं है। वालिदैन सबसे बड़े उस्ताद, बेटों को देखकर ये पता लगाया जाता है कि इनके वालिदैन। तो सबसे बड़ा मदरसा जो है वो लड़कों का, बच्चों का घर है। अपने बच्चों को दर्स दें कि देखो जिस तरह से इमाम तक, अगर इमाम की मार्फत चाहते हो तो उलमा को छोड़कर, मुज्तहिदीन को छोड़कर उलमा तक नहीं पहुंचा जा सकता। यही उलमा है जो बताएंगे कि इमाम की मार्फत कैसे होगी, इमाम की खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। हम डायरेक्ट इमाम तक नहीं पहुंच सकते, हमें इमाम तक पहुंचने के लिए उलमा का वसीला बनाना जरूरी होगा। और अजीजों, आज की इस दुनिया में नए नए मजहब, नए नए लोग हैं कि जो चंद पैसों के लिए अपने ईमान बेच दे रहे हैं। हाँ, हमारे दरमियान एक कौम आ गई है अखबारी की सूरत में कि जो कहते हैं कि उलमा की क्या जरूरत, मुज्तहिदीन की क्या जरूरत, इस अमामे की क्या जरूरत, हमारे लिए हदीस काफी है, हमारे लिए इमाम की रवायत काफी है। एक छोटी सी मिसाल और आपकी सहमत को तमाम। अजीजों, देखिए बहुत सी ऐसी जगह है, बॉम्बे वाले इसको बहुत अच्छे से दर्द करेंगे कि बहुत सी ऐसी जगह, बहुत से गांव हैं जहां पर नल नहीं है। तो नगर पालिका का काम ये होता है कि वहां टैंकर से पानी पहुंचाते हैं, और टैंकर पानी पहुंचाता है तो उस गांव की टंकी में भरता है, और वहां की नल से, उस टंकी की नल से लोग पानी भर भर के अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां टंकी नहीं होती, तो लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं, और उसके बाद वो टैंकर आता है तो लोग अपने अपने बर्तनों में उसी टैंकर से पानी भर भर के लेकर चले जाते हैं। तो जिनके पास ज़र्फ बड़ा होता है वो तो भर लेते हैं,
पेप्सी की बोतलें लेकर जाऊं और उस टैंकर के नल से जो तकरीबन 6 इंच का होता है, उस नल से मैं पानी भरने लगूं अपनी बोतल में, तो आप बताइए कि पानी भरेगा या गिरेगा? क्यों गिरेगा भाई? हमारी नीयत भी ठीक है, बोतल भी ठीक है और वो टैंकर भी ठीक है। आप कहेंगे मौलाना नीयत की बात नहीं है, ज़र्फियत की बात है, ज़र्फियत की बात है। तो ये जो बीच में लोग आ गए हैं, इन अमामे की क्या जरूरत, इन मुज्तहिदीन की क्या जरूरत, इन उलमा की क्या जरूरत? अरे भाई, जब एक टैंकर से एक बोतल नहीं भरी जा सकती और तरीका ये है कि उसे कहीं और ट्रांसफर करो, उसके बाद फिर वहां से इस्तेफादा उठाया जाए, तो हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम डायरेक्ट अली को समझ ले, हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम हसन को समझ ले। अगर इनको समझना है तो खामनई के पास जाना होगा, अगर इनको समझना है तो खामनई के पास जाना होगा। अच्छा सवाल पड़ेगा। ताली पुलिस आपकी सलामती के लिए एक दुआ से बुलंद। दोस्तों, अगर इन तक पहुंचना है, इमाम की मारिफत हमें करनी है, तो उलमा का सहारा लेना जरूरी है। और अजीजों, ये मजालिस फातिमी की तीसरी मजलिस है। देखिए, वहीद खुरासानी साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, ईरान के कुम में रहते हैं, बाहयात हैं। उन्होंने कहा कि मजालिस फातिमी को मुहर्रम की तरह मनाओ, जिस तरह मुहर्रम मनाया जाता है उसी तरीके से मजालिस फातिमी को भी मनाया जाए। इसलिए कि इमाम हुसैन का जुलूस जब हम लेकर निकलते हैं गलियों में, कूचों में, चौराहों पर, तो सब पूछते थे ना पहले कि किसका जुलूस है, तो हम बताते थे ये हुसैन का जुलूस है, ये अली के बेटे का जुलूस है, अली के लाल का, फातिमा के लाल का ये जुलूस है। तो जिस तरह से इमाम हुसैन के कातिल का चेहरा बेनकाब हो गया, उसी तरीके से शहजादी का भी जुलूस लेकर निकले, ताकि लोग पूछेंगे ये मुहर्रम भी नहीं है, किसका जुलूस है, तो हम बताएंगे कि ये रसूल की इकलौती बेटी का जुलूस है। तो जिस तरह से इमाम हुसैन के कातिलों का चेहरा बेनकाब हो गया, उसी तरीके से शहजादी के चेहरा बेनकाब हो जाए। आज शबे शहादत है, बड़ी कयामत की रात है, बड़ी कयामत की रात है। आज वो रात है जिसमें हसन और हुसैन बेमां की हो जाए, ज़ैनब व कुलसूम फरियाद करेंगी। आज ही की रात है जिसमें मौलाए कायनात ने कहा, फातिमा तुमने अली को तन्हा कर दिया, ए फातिमा अब ये अली किसके सहारे जिएगा, ए फातिमा अली अब ये मुसीबतें अपनी किससे बयान करेगा। हाँ, ज़दारान इमाम मज़लूम करबला, हमारे यहाँ एक दस्तूर है, जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, किसी के घर में कोई मर जाता है, तो हमारे गांव का, हमारे शहर का,
آخری فرقہ عزیزوں خدا نہ کرے کوئی اپنے بچوں کے سامنے مارا جائے خدا کی قسم سب سے زیادہ ظلم اس وقت انسان محسوس کرتا ہے کہ بچے کھڑے ہو اور ماں باپ کا ظلم کیا جائے ایک شوہر تھا اس نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مارا ایک غصہ ہو گیا انسان ناراض ہو گیا اپنی زوجہ کو اس نے مارا اچھا کچھ دور گیا گھر سے باہر نکلا اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا واپس آیا اپنی زوجہ کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا دیکھو میں نے بہت غلط کام کیا ہے تم کو میں نے مارا تم پر ہاتھ اٹھایا اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے مجھے مارا آپ ناراض تھے آپ